The reason why the judgment of the Rajasthan High Court is going to be very, very significant is because it all boils down to this, the numbers game in the Rajasthan Vidhan Sabha. Let's quickly take a look at the two broad possibilities that can arise. So here is the full composition of the Rajasthan Vidhan Sabha, where this is the halfway mark that you can see. These are the camps as they are. The threat level is likely to fall for the Gehlot government when, if the disqualification happens. So let's roll that scenario where the speaker decides to disqualify the 19 Sachin Pilot MLAs. In that case, the halfway mark of the House comes down to 92. The Gehlot camp, as of this moment, has 102. So that is a comfortable win. And in a scenario like this, you may hope of many independents and others also jumping ship to the ruling dispensation. So is the wish. So this is going to be the situation. Gehlot is going to win the trust vote with 102 MLAs. Now, what if the disqualification is stayed? That means the disqualification does not happen. In that case, Ashok Gehlot has 102, the majority mark is 101, Sachin Pilot and the BJP as well as the independents not aligned with the Ashok Gehlot total up to the rest, the remaining. 101 is a majority mark. But the threat level has risen for the Gehlot government. Why? Because he only has 102 MLAs as of this moment, just one more than the majority mark. In such a scenario, if the opposition camp were to perhaps lure a few more MLAs from the Gehlot camp, in that case, this will be a very, very tricky scenario. And that's why the government wants, the Ashok Gehlot government wants, the immediate disqualification of the Sachin camp. All right, joining us right now is Pawan Khera, spokesperson of the Congress Party, and Swami Sumedanand Saraswati, BJP Lok Sabha MP from Sikar. Thank you so much to the two of you. Pawan Khera, we'll begin with you. 3 more days in a resort. Obviously, the Rajasthan government is trying to save its government from what you feel is an attempt that is being made to destabilize the governments. Now, I want to know from you, how long can you stay on? Because I hope you realize that there are reports coming in of governance being the casualty. The figures of coronavirus cases in Rajasthan seem to be increasing. So how long can one sustain like this? So people will not forgive the villains of Rajasthan. One of them is represented by my friend here, the MP from Sikar. He's a Swami. He should try and give some good advice, sane counsel to the government. In the middle of Corona, Amit Shah was busy playing chess in Madhya Pradesh. Harshvardhan was busy playing Ludo, we all saw. Smriti Irani was busy playing Antarakshri. And then Sanket Upadhyay asks Pawan Khera, how long can this go on? Sanket, this question should be put to Swami Sumedanand. Why on earth did they find this time, the middle of a crisis, to destabilize our government in Rajasthan? It's very easy to say, आपके घर में, अरे हमारे घर को छोड़िए, गजेंद्र सिंह शेखावत तो आपके हैं, आवाज तो उनकी स्पष्ट है। सरेआम एमएलए बता रहे हैं कि पैसे उनको ऑफर किए जा रहे हैं। So these are the questions that not just you and I, but every single voter of Rajasthan wants answers for. And Swamiji, I expect you to give an honest response, unlike your other colleagues. स्वामी जी से पूछ लें। स्वामी सुमेधानंद जी, आपने सुन लिया पवन खेड़ा साहब का क्या कहना है। उनका एक कहना है कि भाई असली खेल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो लूडो, चेस और ये सब बाकी सब खेल आप छोड़ दीजिए, अंताक्षरी छोड़ दीजिए, असली खेल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है राजस्थान में। उसके बारे में क्यों ना चर्चा? संकेत जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किसी परिवार के मुखिया के नियंत्रण में जब उसके बच्चे नहीं रहते हैं, या किसी टीम के कैप्टन के नियंत्रण में जब उसके खिलाड़ी नहीं रहते हैं, तो वो दूसरी टीम पर और पड़ोसियों पर दोष थोपते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नियंत्रण में राजस्थान की कांग्रेस पार्टी है नहीं। आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आज अशोक गहलोत पायलट के लिए कहता है वो निकम्मा है, वो नकारा है। इसी समय में तो अशोक गहलोत अपने पायलट के साथ में पीछे मोटरसाइकिल बैठ करके घूमते थे और ये कहते थे कि मेरा हीरा है और इस हीरे के साथ चल करके हम राजस्थान में विजय प्राप्त करेंगे। आज वो उनका प्यारा और हीरा नकारा हो गया है। तो मैं कहना चाहूंगा, ये अपने हमारे अमित शाह जी की बात करते हैं और किसी की करते हैं,
गजेंद्र जी की बात कर रहे हैं, गजेंद्र जी ने स्पष्ट कहा है कि पहले आप ये तो बताइए कि टेलीफोन किस फोन से हुआ है। आप सीधे सीधे गजेंद्र जी पर आरोप लगा रहे हैं। गजेंद्र जी स्पष्ट कह रहे हैं मेरी आवाज नहीं है, आप ये बताइए किस टेलीफोन से फोन हुआ है। तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना, ये तो जब जांच सैंपल दिया जाएगा, जांच होगा तभी पता चलेगा। पहले पता तो करें टेलीफोन किसका था, किसने बात की है। गजेंद्र जी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इनकी पुलिस बताए कि इनको किस टेलीफोन से इनकी आवाज पकड़ी गई है, ये तो बताएं पहले कम से कम। ये सारे का सारा ठीकरा भाजपा पर फोड़ रहे हैं। इनका परिवार, इनका कुनबा, इनकी पार्टी इनके नियंत्रण में नहीं है। मैं ये चाहता हूं इस बात पे जवाब ले लूं। पवन खेड़ा, यू हैव हर्ड व्हाट द एमपी फ्रॉम सीकर हैज टू से, योर रिस्पांस प्लीज। स्वामी जी, आप कहते हैं परिवार के मुखिया के काबू में बच्चे नहीं रहे। हमने तो एक पार्टी देखी जिसके बच्चों ने मिलके परिवार के मुखिया को बाहर कर दिया। अडवाणी जी से पूछिए, मुरली मनोहर जोशी जी से पूछिए, तो कम से कम आप तो एक धार्मिक व्यक्ति हैं, बोलने से पहले सोच लेते हैं, एक फोन कर लेते मुरली मनोहर जोशी जी को। मुखियाओं की क्या हालत की आपने अपने परिवार के, तो छोड़िए वो बात, वो संस्कार हमारे नहीं है, आपके यहाँ है। और एक और मैं अंतर बता दूं, हमारे यहाँ नहीं, बीच में नहीं स्वामी जी, मैं थोड़ा सब्र से, मैंने भी आपकी बात, मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका मिलेगा इसका जवाब देने का, चिंता मत करिए। हमारे यहाँ जब नेता विरोध करते हैं ना, तो सुबह फिर भी मॉर्निंग वॉक पे जाने की हिम्मत रखते हैं। आपके यहाँ वो भी नहीं होता है, इसलिए हमारी आपकी तुलना मत करिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपको इस तरह के ताने मारते हुए, लेकिन आपको सोचकर बोलना चाहिए। आपने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत जी की बात, वॉइस सैंपल देने से कौन घबरा रहा? संकेत, I ask you, why were those MLAs not allowed to give voice sample by the Khattar government's police? This is for the first time in the history that an ongoing investigation was completely subverted by law enforcing agencies of Haryana. They are guilty. And what is their complaint? इनकी शिकायत क्या है? स्वामी जी की शिकायत क्या है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही थी क्या वो लीगल है या नहीं? अरे जब चोरी हो रही थी उसकी भी तो बात करिए। चोरी की आपको शिकायत नहीं है, आपको शिकायत है चोरी पकड़ी कैसे गई, वो पकड़ने वालों ने क्या कानूनी तरीके से पकड़ा। ये किस तरह की आर्ग्यूमेंट है, किस तरह की बहस है? चोरी हुई, रंगे हाथों पकड़े गए, गजेंद्र सिंह जी का नाम है, आवाज है, और भी कई लोगों का हमने सुना कि नाम और आवाज है। आगे आगे देखिए, जनता राजस्थान की ना आपको माफ करेगी स्वामी जी। आपके पास तो अभी भी समय है, अपना आशीर्वाद इनसे पीछे हटा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सीकर में आप फिर जीत जाएं मान, चलिए। अदरवाइज बीजेपी ना जीतने नहीं वाली। अब वहां जनता ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी के चार जवाब दे दीजिए। राजस्थान में चार गुट हैं, पवन खेड़ा चारों गुटों को ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी के। Pawan Kheda, you did not respond to that specific point that he made of whose phone was tapped. How did you get hold of that recording? Do you think that as of this moment, Sanket, he does not deserve to know? Sanket, how can the thief say, first tell me how was it recorded? The BJP is the thief here. The thief has no such right to ask. Okay. कि साहब recording कैसे हुई थी? The thief has to first give the voice sample. Okay. And then all these questions fall into place. So investigation will prove this. Swami Sumedanand, माफ करिएगा, कोई हत्यारा कह दे कि मेरे खिलाफ जो गवाही देने गया मेरे कमरे में क्यों झांक रहा था? अरे साहब, गवाह का अधिकार है आपके कमरे में झांका, कैसे झांका वो बाद में अदालत में देखेंगे। स्वामी सुमेधानंद, you have heard the explanation from Pawan Kheda. What is the problem in a voice sample? मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। पहले तो मैं खेड़ा जी से एक बात कहना चाहूंगा। हमारी पार्टी बुजुर्गों का सम्मान जानती है और हमारी पार्टी एक परिवार से नहीं चलती है। हमारे पार्टी के अंदर हर बार आप देखते हैं कि नया लोकसभा अध्यक्ष आता है। हमारी पार्टी में हमेशा ही सम्मान रहता है, इसलिए ये तो नहीं कहें कि हम बुजुर्गों का सम्मान नहीं जानते हैं। आप क्या तो एक परिवार से चलता है सारा कुछ, बाकी न बुजुर्ग है, न नौजवान है, न कुछ भी है। बुजुर्ग और नौजवानों में तो फुटबॉल चल रही है, स्थिति है। मैं कहना चाहता हूं कि ये बात कर रहे हैं एसओजी की, कि भाई एसओजी को वो अपना वाइस क्यों नहीं दे रहे। स्वामी सुमेधानंद, इससे अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, क्योंकि ये सारी चर्चा हो चुकी है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद प्राप्त है सचिन पायलट को? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं आपसे निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी हमने उस दिन भी एक बात कही थी कि यदि कहीं पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का पॉलिटिकल घटनाक्रम होता है तो हम एक जागरूक पार्टी के सिपाही हैं, हम किस तरह से चुपचाप बैठ जाएंगे? हमें सोचना तो पड़ेगा कि राजस्थान की जनता ने
खून पसीने की कमाई से और मेहनत करके एक सरकार बनाई, चाहे वो कांग्रेस की बनाई, लेकिन कांग्रेस को जो जिम्मेदारी दी थी, पहली बात तो इनके पास पहले बहुमत नहीं था। आज ये नैतिकता की बात करते हैं, किस प्रकार से मायावती की पार्टी को पूरी की पूरी को निकल गए। मायावती ने खुद कहा कि राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। गहलोत ने 2 बार सरकार बनाई है, दोनों बार बसपा को पूरी की पूरी पार्टी को चाट गए। तो ये किस प्रकार की नैतिकता की बात करते हैं? ठीक है, हम यही कह रहे हैं। देखिए, कानून की बात हो रही है। कानूनी रूप से सचिन पायलट ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो बीजेपी जा रहे हैं, और ना ही बीजेपी ने कानूनी रूप से कुछ ऐसा किया है। ठीक उसी तरीके से अभी मैं पवन खेड़ा से ये सवाल पूछूंगा, वो बोलेंगे कानूनी रूप से इसमें कुछ गलत नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी आकर के विलय हो गई कांग्रेस पार्टी में। पवन खेड़ा, इज दैट राइट? I mean, these are very predictable answers. In a way, स्वामी जी ने जो कहा उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इनकी नीयत यह है कि उनको भाजपा में शामिल किया जाए। अभी इनके मुंह से निकल गया स्वामी जी, क्योंकि आप साधु सन्यासी हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन सम्मान पूर्वक एक बात कहूंगा। परिवार की आपने बात कही, एक संघ परिवार है, 12 परिवार हैं उसमें जो रेशिम बाग में रहते हैं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ते, पंजीकरण भी नहीं कराया आरएसएस का, और हमारा और आपका और पूरे देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। ये कैसे हो रहा है? आरएसएस के प्रमुख को कैसे प्रमुख बनाया गया? कोई वोट हुआ, इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? ये 12 परिवार कौन है रेशिम बाग के, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के सदस्य संघ में बड़ी बड़ी ओहदों पे रहते हैं? कौन है ये लोग? क्यों मेरे देश का और मेरा भविष्य निर्धारित करेंगे? मैं क्यों करने दूंगा? हम तो हमेशा चुनाव लड़ते हैं, सामने आते हैं। पर्दे के पीछे रहकर क्या कर रही है, हमें ये बताइए। पंजीकरण क्यों नहीं करती? इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी एबल टू एंश्योर दैट ऑल ओपिनियंस are gathered, but very quickly a right to reply। यहां पर स्वामी सुमेधानंद जी, क्योंकि बात आरएसएस की हुई है, आपको एक right to reply देना चाहूंगा। एक निवेदन करना चाहूंगा। पहले तो संकेत जी अपने नॉलेज को सुधार लें। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस ने जनसंघ के ऊपर बैन लगाया था आरएसएस के ऊपर, उस समय सुप्रीम कोर्ट में गए थे, हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट से आदेश हुए थे कि आरएसएस के ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। अगर हमारी ये आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं होता, पंजीकृत नहीं होता, तो कैसे कोर्ट में जा सकते हैं? इसलिए बात ये रही। पंजीकरण का नंबर बताइएगा, मैं भी आपको बता देता हूं। अभी आरएसएस कहां पंजीकृत हुई है, जरा बताइए। आज आपने कहां पंजीकृत हुई है, बताइए। आप संघ पर चर्चा करना चाहेंगे? आप एक जवाब दे दीजिए, कहां पंजीकृत हुआ है? So one moment, I have very limited time. This was a short duration discussion. सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जनसंघ की याचिका को कैसे स्वीकार किया? पंजीकरण नहीं। Okay, so Pawan Kheda has asked a question that has remained unresolved in this discussion. कहां पंजीकृत हुआ? Purely for want of time, I have to end this. Swami Sumedanand can talk about this to Mr. Pawan Kheda on whether the RSS is registered and what is the process, what is the democratic process within the RSS. A very broad-based debate. We'll need more time, but thank you so much, Pawan Kheda, as well as Swami Sumedanand, for joining us on discussion number 1.